Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the Amir Physics Academy. आज हम एक और बहुत इम्पोर्टेंट फर्स्ट ईयर का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी है और जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पेपर में इंक्लूड होता है। इसके अलावा न्यूमेरिकल्स, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और सबसे बढ़कर एमसीक्यूज जो है वो इसमें से इंक्लूड होते हैं, न सिर्फ एनुअल के फिजिक्स के पेपर में बल्कि एनएमडी कैट और ईटा में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। सो आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज द प्रोजेक्टाइल। पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। अ प्रोजेक्टाइल इज अ बॉडी which is projected upward with some initial velocity vi, making angle theta with the horizontal axis, and only the force of gravity acts on it. Projectile जो हमने define की, it is only a body and it may be a spherical body, it may be a body of some irregular shape. There is no specific geometry for the projectile, for a body to be projectile. It may be any body, it may be a body of any shape, but the conditions for a body to be projectile is number one, it must be thrown with some initial velocity vi. This is the first condition. Making angle theta with the horizontal axis. This is another important condition, and the most important condition is that only the force of gravity must be considered acting on the body. तो ये सबसे important चीज है कि आपको ये बताया जाए कि प्रोजेक्टाइल पर सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी कंसिडर की जाती है. All other forces like air resistance, like any other force, all other forces are either not acting or they are considered to be absent, they are ignored. So all these things make our projectile body an ideal projectile body. Dear student, the motion of such a body is called projectile motion. तो अब हम आते हैं जी कुछ साथ साथ एमसीक्यूज की तरफ भी आएंगे जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. तो हम यहाँ पर आपको करवाते हैं प्रोजेक्टाइल के हवाले से एक इम्पोर्टेंट बात लिखवाते हैं जो कि एमसीक्यू में भी इंक्लूड की जा सकती है. द स्टडी ऑफ मोशन of projectile is called ballistics. Ballistic is the study of motion of the projectile. This sentence may be a possible MCQ. तो यहाँ पर प्रोजेक्टाइल की मोशन को हम यहाँ पर किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं. लुक एट दिस डायग्राम which is drawn in an XY plane. A projectile is actually a two-dimensional motion. Projectile motion is a two-dimensional motion. हमारे पास यहाँ पर ये देखें जी, this is an x-axis, this is y-axis, and the region between x and y axis is called an XY plane. So keep in mind, the second MCQ is the motion of projectile is two-dimensional motion. So इसका मतलब ये हो गया कि जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करेंगे तो मोशन के जो पैरामीटर्स हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे, लाइक डिस्टेंस, लाइक स्पीड और वेलोसिटी, लाइक एक्सेलरेशन, ये जो होंगे,
they will be split it into two components. डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स वाई कंपोनेंट में स्प्लिट करेंगे. इसी तरह हम v को यानी वेलोसिटी को, स्पीड को हम दो कंपोनेंट्स में स्टडी करेंगे और इसी तरह एक्सेलरेशन को भी हम x और y कंपोनेंट में स्प्लिट करेंगे. So if you look at this figure, if we throw a projectile in the xy plane, it will move upward, and as a matter of fact it must follow the straight line, but because of the action of gravity which acts downward, it pulls that body downward. So because of the downward pull of the gravity, the path of the projectile instead of straight becomes curved path. The projectile body takes a curved path due to the action of gravity. So if we split the two components, if we split the initial velocity into two components, x and y component, तो यहाँ पर आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी होगी उसका x कंपोनेंट बनेगा vi cos थीटा और y कंपोनेंट जो होगा इनिशियल वेलोसिटी का, इट विल बिकम vi sin थीटा. x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट हमने यहाँ पर प्रोजेक्टाइल के दोनों बना लिए हैं. दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट प्रोजेक्टाइल और प्रोजेक्टाइल मोशन के हवाले से ये है कि ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन x component of velocity remains unchanged as no force acts on it in this direction. Dear students, you know, जैसे ही प्रोजेक्टाइल अपने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से आगे बढ़ती है, इस पर ग्रेविटी की एक्शन की वजह से पाथ इसका कर्व होता रहता है. तो ये पाथ जो आपको यहाँ पर शो किया गया, ये इस पाथ में यहाँ पर जो x कंपोनेंट है इसकी वेलोसिटी का, दैट इज इन दिस डायरेक्शन. और इस डायरेक्शन में ना कोई एक्सेलरेटिंग फोर्स इस पर एक्ट करती है और ना इस पर डिसेलरेटिंग फोर्स एक्ट करती है. डियर स्टूडेंट, कोई इस किस्म की फोर्स इस पर एक्ट नहीं करती. ये फोर्स भी इस पे कोई एक्ट नहीं करती इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में भी कोई फोर्स एक्ट नहीं करती, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस कोई फोर्स हम कंसिडर ही नहीं करते. दैट इज व्हाई एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल रिमेन सेम. और यहाँ पर ये मैंने मैथमेटिकली आपके लिए इक्वेशन लिख दी है कि इनिशियल वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू दी x component of the final velocity, which is vi cos theta. There is no change in the x component as there is no force considered to be acting along x axis. Only the y component of velocity will change, and only because of the action of gravity, and this is the y component of velocity. Vy equal to ये initial component है velocity का, which is vi, and student यहाँ पर ये इसमें से gt subtract किया जा रहा है, which is actually the change in the y component. Why we call gt as change in the velocity? Because if you look at the mathematical पोर्शन पर आप ज़रा इस पर गौर करें, तो यहाँ पर ये जो gt है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ. g is the acceleration due to gravity. gt is the acceleration due to gravity and t is the time. So g is defined as change in velocity पर यूनिट टाइम, और ये टाइम इसके साथ ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो रहा है. सो दिस इज चेंज इन वेलोसिटी. सो चेंज विद नेगेटिव साइन मीन देयर इज अ डिक्रीज in the velocity. So this gt is actually the change in velocity which is with negative sign. नेगेटिव साइन के साथ अगर ये डेल्टा v आ जाएगा, it means a decrease in the velocity. So whenever we throw a projectile in the upward direction, its velocity, its y component of velocity reduces, and at the highest point it will become
जीरो। ये एक्शन ऑफ ग्रेविटी की वजह से एट द एंड जीरो हो जाएगा। यू कैन सी दिस पॉइंट इन द ग्राफ, वी वाई इक्वल टू जीरो। यहाँ पर हम इसको पुट करेंगे और ये जीरो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ slow and gradual action of the gravity, y component will become equal to zero and the body will stop moving along y axis. It will start, it will continue its motion along x axis, but as it goes ahead of this maximum point, its path again curve and it goes downward. ये velocity जैसे ही ये body इस component इस पॉइंट को जब क्रॉस करती है तो क्रॉस करते ही इसका पाथ जो है वो कर्व होना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। और ये पाथ यहाँ पर यू कैन सी, अगर ये हमारे पास ये है वेलोसिटी और ये इसका जो y कंपोनेंट है, नाउ इट is pointing in the downward direction. So downward direction में अब ये increase होना शुरू हो जाएगा, लेकिन y component of x component of velocity will remain unchanged। और ये y component जो है, ये y component आप देख सकते हैं कि slowly and gradually इसमें increase आ रही है, slowly and gradually y component में increase आ रही है। So dear students, याद रखें कि बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ये जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है इट बिकम्स कर्व एंड दिस कर्व पाथ इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी, और इसको टेक्निकली इस ट्रेजेक्टरी को कहते हैं पैराबोला। द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल along which it moves is called trajectory। डियर स्टूडेंट, ये जो ट्रेजेक्टरी है इसको उर्दू में रास्ता कहते हैं। ये ट्रेजेक्टरी कॉमन इंग्लिश का वर्ड है जो कि रास्ते के लिए इस्तेमाल होता है, और इस ट्रेजेक्टरी को फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में टेक्निकली पैराबोला कहते हैं। इट इज कॉल्ड अ पैराबोला। पैराबोलिक पाथ पे ये प्रोजेक्टाइल ट्रैवल करती है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास प्रोजेक्टाइल के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आ चुकी है और हमने काफ़ी पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट इसके बारे में सीख लिए हैं। अब हमारे पास यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी का x कंपोनेंट है, इट इज़ इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है उसके इक्वल होगा। ये है वी आई कॉस थीटा, और जो y कंपोनेंट है इट इज इक्वल टू वी आई वाई माइनस जी टी। और यहाँ पर हम इसको मज़ीद अगर लेके जाएं तो यहाँ पर वी आई वाई जो होगा इट विल बिकम इक्वल टू वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। ये है वेलोसिटी का y कंपोनेंट और ये है वेलोसिटी का x कंपोनेंट। अब डियर स्टूडेंट, सवाल ये पैदा होता है कि ये वेलोसिटी जिसके हमने x एंड y कंपोनेंट लिए हैं, ये वेलोसिटी का x एंड y कंपोनेंट किस जगह पर हमने लिए? ये कौन सी वेलोसिटी है जिसका हमने ये कंपोनेंट लिया है, यानी ये वेलोसिटी किस पॉइंट पर हमने अलोंग द ट्रेजेक्टरी ली है? बात इस तरह है कि ये तो किसी भी पॉइंट पर हम इसकी वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट लेंगे, ये तो इनिशियल और किसी भी जगह पर ये वेलोसिटी का कंपोनेंट सेम होगा। बट y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यू कैन सी इट डिपेंड्स अपॉन द टाइम। सो यहाँ पर अगर हम लेंगे y कंपोनेंट तो उसकी वैल्यू कुछ और होगी, इसकी वैल्यू कुछ और होगी, इसकी वैल्यू कुछ और होगी। कीप इन माइंड y कंपोनेंट चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। हम यहाँ पर एक स्पेसिफिक पॉइंट को सिलेक्ट करके हम कहेंगे कि ये वेलोसिटी हमने इस पॉइंट पर कंसीडर की है। ये पता चल चुका है कि वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन वो चेंज होती रहती है, कांस्टेंट नहीं रहती। ओनली x कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट और y कंपोनेंट कीप्स चेंजिंग। तो जो वेलोसिटी है
in two-dimensional plane, that is the combination of x component y component. अगर एक component भी change होता है तो पूरी velocity change होगी. So projectile motion के दौरान आपको पता है कि velocity का सिर्फ x component constant रहता है और y component में change आती है. लिहाजा मुख्तलिफ पॉइंट्स पर velocity मुख्तलिफ होगी और फिर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की किस जगह मैक्सिमम होगी, किस जगह मिनिमम होगी. सो एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड एट द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट the velocity of projectile will have both the components with full length, with full magnitude. So at these 2 points, the velocity of the projectile will be maximum, while at the highest point, one component of velocity of the projectile becomes 0, and because of this, there will be a minimum velocity of the projectile at the highest point. तो students, ये मैंने यहाँ पर आपको bullet पॉइंट्स की फॉर्म में इसको लिख दिया है. यू कैन सी कि यहाँ पर ये है वेलोसिटी के हवाले से एक और इम्पोर्टेंट सेंटेंस जो कि पॉसिबल एमसीक्यूज में भी आप इंक्लूड कर सकते हैं. वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट द मिनिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट and velocity of the projectile is maximum at the point of projection and at the point of landing or at the point of impact. तो डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह के मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी है, चूँकि वो 2 डायमेंशनल प्लेन में बॉडी की मोशन हम लेते हैं, ये 2 डायमेंशनल मोशन है, तो इसलिए जब हम 2 कंपोनेंट्स को कंबाइन करेंगे, यानी x कंपोनेंट और y कंपोनेंट को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आएगी. सो इन दिस केस, चूँकि ये 2 डायमेंशनल मोशन का केस है, तो हम वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन थ्योरम, द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी v इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, और यहाँ पर हम vx की वैल्यू पुट कर देंगे विच इज इक्वल टू vi cos थीटा विद स्क्वायर प्लस ये है viy विच इज इक्वल टू vi sin थीटा माइनस gt होल स्क्वायर. अब हम यहाँ पर इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा vi स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस vi स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2 vi sin थीटा इंटू gt. ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी. हमने इस पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास vi स्क्वायर दोनों में कॉमन आ गया, तो ये vi स्क्वायर कॉमन है, तो ब्रैकेट में आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा अलग से प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 vi साइन थीटा इंटू जी टी. और अब हम यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे. यू नो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये यहाँ से हट जाएगा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 vi साइन थीटा इंटू जी टी. अब हम यहाँ पर दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये आ जाएगा, यहाँ स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास ये आ जाएगा vi स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस 2 vi sin theta into gt. So student, you can see
जिस तरह के हमने बार बार इस लेक्चर के दौरान ये बताया कि जो वेलोसिटी है वो टाइम डिपेंडेंट है, इट वेरीज विद द पैसेज ऑफ टाइम, सो यू कैन सी देयर इज टाइम इन द इक्वेशन। अगर ये टाइम वेरी करता है तो वेलोसिटी भी वेरी करेगी, तो स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल जो होगा दैट विल वेरी विद द पैसेज ऑफ टाइम, इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा। सो यहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको रब कर देते हैं और यहाँ पर आपको हम यहाँ पर बताते हैं इसकी डायरेक्शन कैसे मालूम करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, आपको ये बात मालूम है कि यहाँ पर हम किसी एक पॉइंट पर वेलोसिटी को मालूम करेंगे। जिस पॉइंट पर हमने वेलोसिटी को कंसीडर किया है उस पॉइंट पर उसका उसका हमने मालूम करना है, उसकी डायरेक्शन भी हमने उसी पॉइंट पर लेनी है। सो एट दैट पॉइंट सपोज दी, इफ एट दैट पॉइंट अगर हमारे पास जो वेलोसिटी है उसका एंगल क्या हो, अगर वो एंगल फाई है, इफ फाई इज द एंगल एट दैट पॉइंट जहां पर हमने वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड किया, देन टेंजेंट फाई will become equal to Vy divided by Vx. So phi equal to tangent inverse, ये हो जाएगा Vy into Vx. Now putting their values, that is values of Vy and Vx. Vy is Vi sin theta minus gt divided by Vi cos theta. ये है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ इस इक्वेशन में भी, डायरेक्शन वाली इक्वेशन में भी हमारे पास टाइम है। सो बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस विद द टाइम। तो ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इसके हवाले से हमने जो बातें हमने इसकी डिस्क्रिप्शन में डिटेल में दी है आपको, और उम्मीद है आप लोगों ने नोट की होंगी। और अब इसके बाद इसकी इक्वेशंस की तरफ हम इंशाल्लाह आएंगे और उसमें हमारी आपकी मुलाकात अगली इंशाल्लाह अगली वीडियो में होगी। तो मुझे आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा और उम्मीद है कि पॉजिटिव फीडबैक के साथ आप जो है वो अपने सजेशंस भिजवाएंगे जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।